میں جانتا ہوں کہ باہر سے آنے والی بہت سی عورتیں برطانیہ پہنچ کر اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ میں تم پر کیسے بھروسہ کروں کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ اور ایک اچھی بیوی بنوں گی اور تمہارا خیال رکھوں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے۔ جب دوسری بار وسیم بیل پہ رہا ہوا تو اس کے بعد وسیم کا اعتماد لندن کے پولیس کے اوپر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بالکل بے قصور سمجھ رہا تھا اور واقعی میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک بار نہیں 2 بار اس کو اریسٹ کر لیا تھا، ایک ہی عورت کے کہنے پر، ایک ہی عورت کے الزام کے اوپر۔ تو اس لیے اس کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا، جس کا اس نے کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں تھا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ اب وہ ہائر اتھارٹیز کو، افسران اعلیٰ کو لکھے گا، شکایت کرے گا، ان کی کمپلین کرے گا کہ پولیس نے اس کے ہیومن رائٹس کو پامال کیا ہوا ہے، اس کو ہیوملیٹ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کافی ناجائز کیا ہوا ہے، ایک عورت کی جھوٹ پر، اس کے جھوٹے الزامات پر جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس طرح لندن کے پولیس نے اس کے ساتھ ایک بھی نہیں 2 بار کیوں کیا؟ اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، اندر سے اس کو غم کھا رہا تھا، کیونکہ کبھی ساری زندگی لندن میں رہتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، ٹیکس دیتے ہوئے ایک شریف انسان کی طرح زندگی گزار رہا تھا، کبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا۔ It is a truly exceptional vehicle. I agree. Let's do it. نہ اس کو اس طرح اس کے ساتھ ہونے، چنانچہ اس نے میئر آف لندن کو ایک لیٹر لکھا اور یہ سارا واقعہ اس میں ذکر کیا، اور ساتھ ہی پولیس کمانڈر کو بھی اس نے ایک خط لکھا، اس میں بھی اس کے فورس کے خلاف اس نے شکایت کی، لیکن میئر کی طرف سے وہ نا امید ہوا، کیونکہ میئر نے اس کے کیس میں مداخلت کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس میں ایسے باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ میئر کا جواب تھا، لیکن پولیس کمانڈر نے تو اس کو بالکل اگنور ہی کر دیا، اس کا خط کا جواب دیا ہی نہیں۔ تو اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، لیکن یہ ہار نہیں مان رہا تھا، اس نے ہار نہیں مانا، کیونکہ اس کو اس کیس کے تہ تک پہنچنا تھا، اس کے ساتھ یہ ناجائز ہوا تھا، اس نے سر عام پر لانا تھا، اور ساتھ میں اپنی اس بیوی کو ڈھونڈنا تھا، اور بیوی کو ڈھونڈنا اس کے لیے بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ وہ ملے گی تو اس سے یہ سب پتہ چل سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جب گھر سے بھاگی تھی تو وہ پریگننٹ بھی تھی، 6 ہفتوں کی پریگننٹ تھی، اور وسیم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس طرح سے غائب ہو جائے، اور اس کا بچہ یا بعد میں بچی ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو یہ اسے کبھی دیکھ بھی نہ سکے۔ تو اس کے لیے ایک فرض اہم تھا کہ اپنی بیوی کو وہ خود ہی ڈھونڈ کر نکالے، کیونکہ اتھارٹیز تو اس کی مدد نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو ان سے منہ پھیر دیا، ان کو جواب بھی اس کو وہ نہیں دیتے تھے۔
उसको तो टोटली उन्होंने सिर्फ इग्नोर करना ही किया, मुजरिम ठहरा दिया बगैर किसी कसूर के कि तुम मुजरिम हो, तुम क्रिमिनल हो। You are a criminal. You committed numbers of crimes and you should be charged. तुम बात मत करो, तुम्हारे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, कानून के मुताबिक किया जा रहा है। और पुलिस ने उसको बेल पे छोड़ते हुए ये धमकी भी दी थी, ये वार्निंग भी दी थी कि खबरदार, अगर तुमने अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश की और किसी तरह से उसको कांटेक्ट किया तो तुम्हारा बेल खत्म, तुम्हें दोबारा अरेस्ट कर दिया जाएगा और फिर बेल होगा भी नहीं। तो अब वसीम बेचारा क्या करे? वो घर से निकल के अपनी बीवी को खुद तलाश करना नहीं चाह रहा था। वो तो इन्हीं अथॉरिटीज के, इन्हीं अफसरान आला से तवक्को रख रहा था। इसीलिए उनको लिखा कि वो इसके इस नाजायज केस पर एक नजर सानी कर दे, इसको गौर से देखे कि इसके साथ इस तरह जुल्म क्यों किया जा रहा है। इसकी बीवी ने ये कुछ किया, वो उसका तो एक एजेंडा था, उसने सब साफ ज़ाहिर वीज़े के लिए किया, उसको इंडेफिनिट वीज़ा चाहिए था, वो इसी गर्ज से आई थी, इसको इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँच गई। अभी इसको दोबारा उसने इस्तेमाल किया वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि वीज़ा ऐसा ही मिलता है कि अपने खावंद को पर झूठे इल्ज़ाम लगाओ और उसे अरेस्ट करवाओ। ऐसा छोड़ने से नहीं कि उसको बस छोड़ दो जाओ फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करो, ऐसा नहीं मिलेगा। उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाने होंगे, पुलिस से उसको अरेस्ट करवाना होगा, एक केस को बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना होगा, तभी जाकर होम ऑफिस इस पर फैसला देगी कि इसको, ये विक्टिम ऑफ क्राइम है, इसको इंडेफिनिट वीज़ा देना चाहिए। तो ये औरतें ये बातें शादी से पहले अपने मुल्कों से जानती है, उन्हें पता है कि वहाँ पहुँचकर उन्होंने इसको किस तरह से शुरू करना है, क्या करना चाहिए, सब पता है उनको। अगर कुछ ना भी पता हो, अगर कुछ ना भी पता हो तो यहीं से भी उनको सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए तो उसकी बीवी आफी आते ही सारा दिन चेकिंग करती थी। किस लिए? इस तरह के लोगों को ढूंढकर उनसे मशवरे लेती थी कि अब तो मैं पहुंच गई हूँ, अभी मुझे बताओ मैं किस तरह से निकलूँ यहाँ से और इस वीज़े को हासिल कर सकूँ। मुझे इस आदमी की और ज़रूरत नहीं है, बस इतना इसके साथ हूँ मैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। जब मुझे खबर मिले कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ब्रिटिश बोर्न बच्चा भी चाहिए ताकि वो मेरा काम आ सके बाद में, उसकी वजह से मैं बच जाऊँ, इस मुल्क में रह सकूँ। इस वजह से तो ब्रिटिश बोर्न बच्चा कहाँ से आएगा? इसके साथ रहेगी, प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पैदा होगा तो वो ब्रिटिश होगा। इसलिए ये सारी चालाकियां ये लोग अपने मुल्कों से उन्होंने सीखा हुआ है, इन चीज़ों को उन्होंने कोर्स किया हुआ है, सब पता है। तो क्या ये अथॉरिटीज़ नहीं जानती इन चीज़ों को? इन्हें भी पता है, फिर भी इनका ये लोग सपोर्ट करते हैं, इनको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, जैसे आफी को कर रहे थे। तो ये मायूस हुआ, एक लेटर का जवाब नहीं आया, दूसरे ने कहा कि हम कर नहीं सकते। तो अब क्या करेगा? हाथ पे हाथ रख कर बैठेगा, इनके रहम करम पे छोड़ेगा? बीवी तो भाग गई, अब अपने पैदा होने वाले बच्चे को भी न दे सके। इतना जुल्म बिला वजह, बगैर इसके किसी जुर्म और कसूर के, आखिर क्यों? इस वजह से इसने ये रिस्क लिया
کہ اب خود میں ڈھونڈوں گا. اب کیسے ڈھونڈیں؟ وہ بلیک سسٹرز آرگنائزیشنز جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا ہسبینڈ تو دوسری دفعہ بھی بیل پہ چھوٹ گیا, کیونکہ دوسری دفعہ جو اس پہ ایلیگیشنز لگایا تھا وہ بلیک سسٹر نے خود ہی جا کر پولیس اسٹیشن پہ لگایا, خود ہی پولیس اسٹیشن جا کر اس پہ آفی کے ہسبینڈ پہ فالس ایلیگیشن لگایا, تاکہ پہلی دفعہ تو یہ بیل پہ چھوٹ گیا تھا, اس دفعہ یہ اندر ہو جائے تو ان کا کام دھندا چلتا رہے. جب تک یہ باہر ہوگا تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ کھڑا کر سکتا ہے, یہ کیس ختم ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بلیک سسٹر خود ہی چاہتے تھے کہ اس کا ہسبینڈ اندر ہو, اور ساتھ میں اس کو ڈرا رہے تھے اگر وہ باہر ہو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. تو اس کو ساتھ کھینچ کے لے گیا کہ ہم نے الزام لگانا ہے, ہم نے پولیس کو بتانا ہے, تم خالی ہاں ہاں بولو, یہ ٹھیک کرے گی. یہ کیا بلیک سسٹر نے. لیکن جب دوسری مرتبہ یہ بیل پہ چھوٹ گیا تو ان کے اوپر آگ لگ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پہلی دفعہ آفی نے خود اتنے سخت قسم کے الزامات اس پہ لگائے تھے, اتنے سیریس ایلیگیشن لگائے تھے, پولیس نے بیل پہ چھوڑ دیا. دوسری دفعہ اب نے خود لگائے, پھر بھی پولیس نے بیل پہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے کیا کیا, فوراً آفی کو اٹھا کر لندن سے نکال دیا. پہلے لندن میں اس کو جگہ دی تھی, پھر لندن سے نکال دیا. کہاں لے گئے؟ ساؤتھ ویلز لے گئے, کوئی 170 مائل دور, جو لندن سے دور ایک علاقہ ہے ساؤتھ ویلز میں, نیو پورٹ. وہاں ان کا ایک اور کانفیڈنشل خفیہ شیلٹر ہے, جہاں یہ چاہتے ہیں جن کو بالکل چھپا کے رکھے تو وہاں لے جاتے ہیں. تو آفی کو وہاں لے گئے کہ اب مجال ہے اس کا ہسبینڈ اس کو ڈھونڈ سکے, کیونکہ ان دونوں کا ملنا یہ نہیں ہے, تاکہ یہ نہیں تھا کہ 440 واٹ کا سپارک تھا اور کوئی دھماکہ ہونے والا تھا. نہیں, وہ اس لیے ان کا ملنا مطلب کیس کا ختم ہونا, ان کا دھندا بند ہونا, اس وجہ سے ان کو ملنے نہ دو, دور رکھو. تو آفی کو وہاں رکھ دیا. اب وسیم کے پاس کوئی کانٹیکٹ اس کا نہیں ہے کہ اس نے اپنا فون نمبر تو بدل دیا تھا. یہ تو وسیم نے خود دیکھا, کیونکہ وہ وسیم جب گیا فون سم شاپ میں اپنے لیے جب سم لے رہا تھا, تو پہلے اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی, وہ بھی سم لے رہی تھی, یعنی نمبر بدلوا رہی تھی. تو وسیم کو تو پتا تھا کہ اب اس کا تو وہ نمبر نہیں ہے جو پہلے تھا, تو اس کو کس طرح کانٹیکٹ کروں. تو ایک دم اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ کسی زمانے میں جب وہ موراکو میں تھی, اس نے کچھ تصاویر وسیم کو ای میل میں بھیجا تھا. تو ایک دم وسیم نے فوراً اس کے ای میل کو اپنے لیپ ٹاپ پہ ڈھونڈنا شروع کیا. کہ خدا کرے وہ ملے اور وہ ابھی تک اس کا یہی ہو, اس نے بدلا نہ ہو. تو وہ جس طرح ہر بار اپنا فون نمبر بدلتی تھی, تو ہو سکتا ہے ای میل بھی بدلا ہو. لیکن جب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو خوش قسمتی سے اس کے لیپ ٹاپ پہ اس کا ای میل اس کو نظر آیا, مل گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں, اسی پہ میں ای میل کرتا ہوں. تو اگر یہ ابھی تک اس کا یہی ای میل ہے تو اس کو پہنچ جائے گا. بعد میں اس کی مرضی ہے, وہ جواب دے یا نہ دے, یا پولیس کو بتائے اور پھر پولیس کہ دیکھو اس نے یہ دیکھو ای میل بھیجا ہوا ہے, تو پولیس فوراً آ کر مجھے اریسٹ کر کے پھر لے جائے, پھر بیل بھی نہ ہو. یہ سارا خطرہ تو تھا, لیکن یہ سارا اس نے اس کا رسک لے لیا. بیوی کو ڈھونڈنا ضروری ہے, کیونکہ وہ تو ناجائز, دوسرے تو ویسے ہی کر رہے ہیں. تو ای میل بھیج دیا, اور خوش قسمتی سے ای میل ابھی تک اس کا وہی تھا. اس نے بھی ایک دم سے جواب دیا. وسیم کو کہا کہ وسیم
तुमने मुझे क्यों ईमेल भेजा हुआ है? मेरे साथ कांटेक्ट मत रखो। मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ कि मेरे साथ कांटेक्ट मत रखो। ये बड़ी ख़तरे की बात है। मुझे वार्न किया गया है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी वार्न किया गया है, तो हम दोनों के लिए ख़तरा है। तुम अपने आप को मुसीबत में डालोगे, साथ में मुझे भी मुसीबत में डालोगे। मुझे दोबारा ईमेल मत करना। अब वसीम ने जब ये देखा कि ईमेल काम कर रहा है, इसको यही देखना था। बस 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 बात बन गई। वो आफी क्या कहती है, उसको इससे परवाह नहीं है। इसने दोबारा लिख दिया। जब दोबारा लिख दिया, आफी ने फिर एक धमकी के साथ जवाब दिया। अब इसे इत्मीनान हो गया कि वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये चाहता था। अब धमकियां दे रही है और जो कुछ कर रही है, इसको इससे परवाह नहीं। बस इसको ये चाहिए कि मैं लिखूं, वो जवाब दे। बस चाहे ऊपर से गालियां भी भेजे, जवाब देना चाहिए उसको। अब ये खुश हो रहा है, आफी जवाब दे रही है। तो इस तरह से कोई एक हफ्ता इनके बीच में ईमेलिंग होता रहा। बाद में वसीम ने उसको कहा कि देखो आफी, अब ईमेलिंग बहुत हो गया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? मुझे फ़ोन करो यार, कुछ तफसील से बात करें। अब ईमेल पे कितना लिखा जाएगा? और वैसे भी मैं तुम्हारी आवाज़ के लिए तरस रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता हूँ। किस लिए मैं तुम्हारे पास मोरक्को हर दूसरे महीने इतना खर्चा करके फ्लाई करके आता और तुम्हारे साथ 1-2 हफ्ते गुजार कर फिर वापस लंदन आता। यस! क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ और रहना चाहता भी नहीं। ये तो तुम हो जो भाग गई हो। तो अब कम से कम अपनी आवाज़ तो सुनाओ, इतना तो जुल्म मत करो। आफी ने कहा देखो, मैं फ़ोन नहीं कर सकती, ये ईमेलिंग बहुत है। मैंने तुम्हें पहले ईमेल से भी मना किया था, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे हो। लेकिन फ़ोन मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, ये मेरे लिए मुसीबत कड़ी हो जाएगी। तुम नहीं जानते हो इन लोगों को। वसीम ने कहा तुम तो उनमें अभी आकर रह रही हो, मैं तो सारी ज़िंदगी इस मुल्क में रहता हूँ। ठीक है, इन लोगों से मेरा वास्ता नहीं पड़ा हुआ है पहले, लेकिन मैं जानता हूँ ख़ासकर ये लोग जो है किस कैटेगरी के होते हैं। तुम इनसे मत घबराओ, तुम फ़ोन करो। हाँ, मुझ पे भरोसा रखो, ये मेरे तुम्हारे दरमियान कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ। बात आपस की है, मेरे और तुम्हारे बीच। अब क्या करो ना। तो इस तरह से उसने आफी को एतमाद में ले लिया। आखिर वह आफी उसकी बीवी थी। यहाँ आई तो ठीक है, नहीं थी, इतना 6-7 हफ्ते रही थी, लेकिन ये तो उसको कोई तकरीबन अभी 13-14 महीने से जानता था, क्योंकि मोरक्को जाता था और उसे मिलता था, उसको घुमाता था वहीं कार में भी, हॉलीडेज़ कराता था, सब कुछ करता था, तो वो जानता था। तो फिर आफी मान गई। उसने कहा ठीक है, अगर तुम वादा करते हो कि कोई मुसीबत कड़ी नहीं होगी तो मैं फिर तुम्हें रात को फ़ोन करूँगी। हाँ, 12 बजे याद रखना। अभी दिन में मैं नहीं कर सकती, इन सब को सो जाने दो। जब सब सो रहे हो तो फिर मैं कमरे में जाकर कमरा बंद करके तुम्हें फ़ोन करूँगी। वसीम ने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक 12 बजे वसीम ने भी फ़ोन ऐसे अपने सामने रखा था, तकिए के ऊपर लेटा हुआ है। रात के 12 बजे आंखें उसके खुली देख रहे, बार बार फ़ोन की तरफ कि अभी घंटी बजेगी, अभी घंटी बजेगी। ठीक 12 बजे घंटी बज गई। वसीम यूं उठा और उस साथ में फ़ोन उठाया और हेलो माई लवली आफी, मेरी जान, तुम्हारी आवाज़ के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। ओहो,
मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब कम से कम तुम्हारा चेहरा तो सामने नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे कानों के अंदर जा रही। तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त कितनी खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ। वहां से आफी सुन रही थी। अब क्या करे, इसको आफी को एतमाद में लेना था, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वैसे भी ये आफी के साथ बुरा नहीं था, ये नहीं चाहता था कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। उसने जो किया किया ठीक है, उसको पता था कि ये इसकी दुश्मन नहीं है, उसको वीज़ा चाहिए था बस। और वीज़ा लेने के लिए यही तरीका, एक ही तरीका है कि इख्तियार करो। और ये पहली औरत नहीं है, बहुतों ने किया है और बहुत कर रहे हैं। वो शेल्टर तो भरा पड़ा हुआ था औरतों से। वो बाद में सारी कहानी फिर आफी ने बता दी। तो सबको अथॉरिटीज माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। सब औरतें जेन्युइन है, सब विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स है, सबके मर्द जो है वो जालिम है, वो जुल्म करते हैं। उन्हीं को अरेस्ट करो, उन्हीं को अंदर करो, उन्हीं को चार्ज करो, सब उनके साथ करो। जालिम सिर्फ मर्द ही है। ये औरतें बेचारी सब मासूम है, बेगुनाह है। ये तो शादी करके आ जाती है, इन्हें कोई पता नहीं होता। इन पे भरोसा करके ये मारते हैं, पीटते हैं, रेप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये मर्द ही बुरे हैं। इसलिए शेल्टर्स भी औरतों के लिए बना हुआ है, सपोर्ट सेंटर्स भी उनके लिए बना हुआ है, क्योंकि उन्हीं के लिए फंड आता है। ये सब फंड का चक्कर है, फंड्स, पैसा, इसलिए सपोर्ट हो रहा है। और क्या बाहर की औरतों पर ये लोग आशिक है? ये इनको उनका गम है। वसीम एक सिटीजन है, सारी जिंदगी रह रहा है, सारी जिंदगी से रह रहा है, टैक्स पे कर रहा है, काम कर रहा है। Welcome to our showroom. It is a stunning car. Congratulations. Enjoy your new ride. उसको इस मुल्क, उसकी कमाई से इस मुल्क को फायदा हो रहा है। वो तो उल्टा बोझ है। अभी आई है, इंग्लिश भी नहीं आती है, अभी पहुंची है। हर बार इंटरप्रेटर की जरूरत होती है बात करने के लिए। अभी पहुंची है, लेकिन सारा सपोर्ट उसको मिल रहा है, क्योंकि उस पर फंड्स मिल रहा है। ये बात बिल्कुल, वरना ये लोग उनके आशिक नहीं है तो वसीम को क्यों सपोर्ट करे? कौन सा फंड उस पर मिलेगा? अलगरस फोन उसका आया 12 बजे। अब 4 घंटे ये दोनों फोन पे बातें कर रहे हैं। 4 घंटे, अनबिलीवेबल, ये अजीब है। तो फिर आखिर वसीम ने खुद उसको कहा कि आफी अभी दिन निकल आ रहा है, क्योंकि गर्मियों के दिन थे लंदन में, जल्दी सुबह हो जाती है, 4 बजे से पहले सुबह हो जाती है। कि अभी 4 बज गए, मुझे फजर पढ़ना है। तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फ़ोन भी किया और इतना मेरे को वक्त भी दिया। तो आफी भी बेचैन थी। गलती तो उसने की थी, लेकिन बेचैन थी, इसलिए 4 घंटे फ़ोन पे लगाया। फिर भी बस वो नहीं कर रही थी। इसने उसको कहा कि अभी बंद करो, फिर बात करते हैं। मुझे नमाज पढ़ दी है। तो अलगरज ये फ़ोन का सिलसिला फिर अभी चालू हुआ। अब डेली बातें करते रहे, डेली फ़ोन पे बातें करते रहते थे। फिर कुछ दिन गुजर गए। फिर वसीम ने कहा कि यार आफी, मैं तुम्हारे शक्ल को देखने के लिए तरस रहा हूँ। अब तुम फ़ोन करती हो, व्हाट्सएप पर भी नहीं आती हो कि तुम्हें डर लगता है, ताकि कम से कम तुम्हारा वीडियो मैं देख सकूँ। लेकिन अब आवाज़ है, तस्वीर नहीं है, चेहरा नहीं है। तुम्हारे चेहरे के लिए मैं तरस रहा हूँ। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। डार्लिंग, I love you so much. You know that. Your place is always in my heart. You know that. तुम्हें पता है। तो फिर गम किस बात का है, डर किस बात का है?
मिल लो यार, मुझे तसल्ली होगी, खुशी होगी। आप ही ने बहुत पहले इनकार किया और बहुत एकदम मना किया, नहीं ये इनको पता चलेगा एक तूफान खड़ा होगा, मेरे लिए भी उन्हें तुम्हारे लिए भी। तो कैसे मैं यहाँ से जाकर बाहर मिल सकती हूँ और ना ये जगह दिखा सकती हूँ, ये जगह का, इस जगह का पता बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल है। इसके बाद क्या हुआ उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर शुरू करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और हकीकी है, किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, जेन्युइन है। तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस पूरी कहानी को इस तरह किस्तों में वीडियोस बनाकर ख़त्म करूँगा। लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, सबक आमोज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान ख़ान है और मैं अपने YouTube चैनल क्यूसिस हिस्टोरिकल स्टोरीज़ पर सच्ची और दिलचस्प तारीख़ी कहानियाँ पेश करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें ज़रूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल क्यूसिस हिस्टोरिकल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।